کائنات میں اس وقت میں اسٹاکسٹ کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ میری رائے، میرا مشورہ، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اگر وہ اسٹاک کرنا چاہتا ہے تو اس میں دلچسپی سب سے زیادہ وہ کائنات میں دلچسپی لے۔ بہت ہی فصل شارٹ ہے، بہت ہی کم کاشت ہوئی ہے، ڈیمانڈ اس کی انٹرنیشنل بہت زیادہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ غلہ منڈی عارف والا بھرپور ریبل دان 1509 کم و پیش 70 سے 80 ہزار بوری کی ریبل ہے۔ تو الحمدللہ مارکیٹ میں بہت ہی اس وقت اچھا کام ہو رہا ہے، بہت ہی اچھا لین دین چل رہا ہے، لیکن کچھ حالات و واقعات میں حالات حاضرہ کے حوالے سے، آج کے تازہ ترین کے حوالے سے اور ہر مہینے کے پورے مہینے کے اتار چڑھاؤ کے حوالے سے ایک میں پروگرام کرتا ہوں، جس میں اس مہینے میں ایڈوانس کے اور آنے والے دنوں کے کتنے سودے مارکیٹ میں چل رہے ہیں، بڑے پیمانے پہ آس پاس کے ممالک میں کیا ہو رہا ہے، چاول کا بڑے پیمانے پہ کدھر سودے ہوئے ہیں، کون سے ملک نئے آئے ہیں، اس حوالے سے تھوڑی سی میں اپڈیٹ دیتا ہوں۔ تو یہ پچھلی دہائی، فرسٹ دہائی جو ہے، یکم سے لے کے 10 تاریخ تک سلو مارکیٹ پلس کی طرف گئی، اور 11 تاریخ سے لے کے آج 20 تاریخ تک جو یہ دہائی ہے، اتنی تیزی کہ شاید تمام حدیں کراس کر گئی۔ حدوں کا مقصد یہ میں بولتا ہوں کہ جو اثر ریٹ ہونا چاہیے اس کو کراس کر گئی۔ ٹھیک ہے، اعداد و شمار کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے، بیرون ملک کے ریٹ کے حوالے سے، ایکسپورٹ کے حوالے سے یہ ریٹ بالکل فیور نہیں ہے۔ کسی وجہ سے اس ریٹ میں چاول ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا جو اس ٹائم انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق ریٹ چل رہے ہیں۔ تو یہ آنکھیں بند کر کے سٹاکسٹ آئے ہیں مارکیٹ میں۔ عارف والا میں سب سے زیادہ اس ٹائم سٹاک کرنے والا مل اونر چاول بیچ رہا ہے، وہ بھی سٹاکیہ میدان میں ہے، مارکیٹ میں ہے، جس کا ٹائمنگ غلط ہے، غلط ٹائم کے اوپر اس نے سٹاک کرنا شروع کیا ہے۔ پہلے مارکیٹ پچھلی آج سے 20 دن پیچھے چلے جائیں تو مارکیٹ تھی 3400-3500 سے لے کے 3700 روپے تک۔ آج کی مارکیٹ ہے 3600-3700 سے لے کے 4400 روپے تک۔ 4400 روپے میں خرید کر کے چاول بنا کے بیچنے میں بالکل ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ ملک کے اندر جتنی ضرورت ہے اس سے ہمارا مال زیادہ ہے، اس وجہ سے بھی ملک کے اندر اس کی لاگت ہے، وہ بھی غلط بات ہے۔ تو سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ جو بھی سٹاک کرنے والے ہیں آنکھیں کھول لیں، بعد میں پچھتائیں گے اور اپنا نقصان کریں گے۔ زیادہ نقصان کے چانسز ہیں، یا اللہ رب العزت کی تدبیر غالب آ جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ بڑھ جائے، یا کوئی ایسا بائر آ جائے جو زیادہ بڑے پیمانے میں خریداری کرے، تو ممکن ہے ریٹ یہ برقرار رہ جائیں یا اس سے بہتر ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے فیصلے اپنے ہیں، ہماری عقل سوچ اپنی ہوتی ہے۔ تو میں حاضر حالات واقعات دیکھتے ہوئے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ سٹاک اس کا جو کرنے کا ٹائم ہے وہ غلط ہے، اور ان کے جو ریٹ ہیں وہ غلط ریٹ پہ خریداری کر رہے ہیں۔ یہ ریٹ بیک آئے گا 4400 میں۔ جن لوگوں نے 1509 سٹاک کیا ہے، میں اس کے فیور میں نہیں ہوں۔ میرا مشورہ ہے
सोच समझ कर चलें। फसल बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फसल है। तो जब तक ये एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी, एक्सपोर्टर के रेट आ जाएंगे सामने, तो ये 4,000 के अंदर मार्केट आ सकती है। और ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें नज़र रख के, हर चीज़ के ऊपर देखभाल करके, इंटरनेशनल मार्केट के को मद्देनज़र रखते हुए मैं बता रहा हूँ कि ये 4400 मार्केट नहीं रहेगी। जिन लोगों ने खरीदारी कर ली है वो भी याद रखें। और जो बारह दफा ये सवाल करते हैं कि लोगों ने इतनी खरीदारी कर ली है, किसी ने 40,000 बोरी कर ली है, किसी ने 50,000 कर ली है, तो हमें आपने गलत मशवरा दे दिया, हम अभी रुक गए हैं, मार्केट ऊपर चली गई है। मैं आज भी बोलता हूँ कि मार्केट ऊपर नहीं है, ये मार्केट वापस आएगी इंशाल्लाह। बकाया अल्लाह रब्बुल इज्जत खैर करे सबके लिए, खाने वालों के लिए। पिछले साल 2023-24 में भी इसी तरह ही स्टॉकिस्ट ने आकर मार्केट को ऊपर कर दिया, फिर सारा साल देखता रहा। 6-7 माह बाद अगर माल सेल किया है तो उसमें उसको को खास मार्जिन नहीं मिला। तो इसी तरह चावल के स्टॉकिये ने, इसी तरह मैंने पिछले साल ये बताया था, फसल बहुत ज़्यादा है, वो आदमी जीतेगा जो लेन देन करेगा। क्योंकि स्टॉकिस्ट का साल होता है, जो वक़्त फसल शार्ट होगी उस वक्त वो खरीदारी करे, या फसल की कसरत हो तो जिस वक्त पीक पे फसल आ रही हो उस वक्त स्टॉक करना चाहिए। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी जगह पे धान की फसल आ रही है वो है गल्ला मंडी आरिफ वाला। और गल्ला मंडी आरिफ वाला में 70-80 हजार बोरी की रेबल है डेली की बुनियाद पे। तो बकाया मार्केटें जितने भी है, अपर पंजाब है, जनूबी पंजाब में सिर्फ फसल शुरू हुई है, वो भी 3-4 जिला में। तो बकाया मशरकी पंजाब में सब इलाकों में कटाई अभी लेट है, 10-12 दिन। तो उसके बाद जब ये रेट खोलेंगे तो मार्केट में इंशाल्लाह अपनी जगह पे सारे रेट आ जाएंगे। मैं जितने भी स्टॉक करने वाले, जितने भी खरीदारी करके रखने वाले लोग हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि इस महीने की 30 तारीख तक, ये आखिरी 10 दिन जो हैं, इसके अंदर अंदर मार्केट बैक आएगी, इंशाल्लाह आएगी। बेशक स्लो स्लो आए, मार्केट जरूर बैक आएगी और आप सबको नजर आएगी ये। तो ये गैर यकीनी तौर पे ये ऊपर चली गई है। तो ये स्टॉकिस्ट को इतना तो शौर होना चाहिए कि चावल का रेट क्या है तो हम क्या रेट में पैडी खरीदारी करें। बिल्कुल वो फैसला करके आता है कि आज मैंने 5,000 बोरी लेनी है तो वो 5,000 बोरी की खरीदारी करता है। ये तरीकाकार उसको सोच समझ कर करना चाहिए। पिछले साल में भी इन लोगों ने नुकसान किए हैं, इस साल और भी लोगों को फंसा रहे हैं और खुद भी अपना नुकसान कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबके लिए खैर बरकत करे। बकाया आज मार्केट में जो रेट रहे हैं वो ये एरी 6 का रेट है, इसका रेट 2200 रुपये तक बिका है जी मार्केट में। माल खुशक है, 18-17, 18-19 मॉइस्चर होगा। और मकई का जो रेट है, ये नई फसल आ गई है, नई मकई, मौसमी मकई जिसको बोलते हैं, ये नई आई है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मार्केट में इसका रेट 3100 रुपये, 3,100 रुपये में आज सेल हुई है। माल खुशक है, मॉइस्चर इसका होगा 13 के करीब। और माशाल्लाह बहुत अच्छा साफ सुथरा माल है। तो ये जो माल आ रहे हैं, नई फसल की आमद है, मकई की, नया सीजन है और गाहक में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। खरीदार बड़ी गर्मजोशी के साथ इस वक्त मकई की खरीदारी कर रहा है। पुरानी मकई का रेट 27-2800 है और नई मकई का जो रेट है, क्योंकि इसमें फंगस नहीं है, इसमें अल्फा टॉक्सिन नहीं है, इसमें डैमेजेस कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए ये इसका रेट जो है वो 3100 रुपये तक मार्केट गई है। इसके अलावा 1509 है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का माल इस वक्त आने वाला मार्केट में आ रहा है। बहुत अच्छे माल हैं जो हाथ कोटी के हैं, छोटी कटर के मशीन है, इनका रेट जो है वो
20 अक्टूबर है, आज 4400 तक बिके हैं, 4200, 4300, 4400 तक बिके हैं। और जो बड़ी मशीन का कटर है या मॉक्चर ज़्यादा है, 25 से प्लस मॉक्चर जा रहा है, तो वो रेट जो है वो उनका रेट 3800, 37,500, 3800, 3900 में बिके हैं। तो ये रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मार्केट में इस वक्त ज़्यादा तेज़ी हो गई है हालात के हवाले से, रेट थी ये। और आने वाले दिनों में यकम के बाद मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद मार्केट के हवाले से, कायनात की नई फसल का आगाज़ हो गया है, यकम के बाद कायनात के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कितनी फसल है और काश्त कितनी हुई है। इसके सामने उसकी पैदावार भी खुल के सामने आ जाएगी इन दिनों में। और इंडिया के अंदर कितनी काश्त हुई है, पाकिस्तान में कितनी हुई है, और दुनिया में इसकी डिमांड कितनी है, काश्त कितनी है, मैं इसके हवाले से इंशाल्लाह आपको अपडेट दूंगा। कायनात में इस वक्त मैं स्टॉकिस्ट को एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि मेरी राय, मेरा मशवरा, ये मेरी ज़ाती राय है कि अगर वो स्टॉक करना चाहता है तो इसमें दिलचस्पी सबसे ज़्यादा वो कायनात में दिलचस्पी ले। बहुत ही फसल शॉर्ट है, बहुत ही कम काश्त हुई है, डिमांड उसकी इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा है। और उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा जो है ना बेनिफिट मिल सकता है एक्सपोर्टर को, राइस वाले मिलर को, और जो भी उसका चावल खरीदेगा, मुंजी खरीदेगा, क्योंकि फसल काश्त कम है। और अदर वैरायटियाँ कुछ आई हैं, कुछ नए सीड आए हैं, उनके बारे में भी मैं आपको अपडेट दूंगा। 1847 का चावल है, कितना है, जिमीदार को उसका क्या बेनिफिट हो रहा है, और खरीदार उसमें क्यों दिलचस्पी इतनी नहीं ले रहा, तो क्यों इसके, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आने वाले यकम के बाद आपको ये चीज़, इसकी तफसीलात बताऊंगा। तो अल्लाह ताला खैर बरकत करे, खाने वालों के लिए, तमाम दोस्तों के लिए दुआओं में याद रखें। फिर मैं बोलता हूँ कि सोच समझ कर स्टॉक करें, बिला वजह किसी को देख कर अपने फैसले ना करें। मैं आरिफ वाला गल्ला मंडी में बाहर के शहरों से लोग आकर भी खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि ये इधर रेवल ज़्यादा है। फसल तो है लेकिन इधर आलू की बेल्ट है, आलू के ग्रोर है, जितने भी आलू के ग्रोर है, नई काश्त शुरू हो गई आलू की, ज़ोर से है और कटाई ज़ोर से लगी हुई है। इस हवाले से यहाँ से आके बाहर से भी खरीदारी कर रहे हैं लोग। तो उनको भी मशवरा है कि उनका अपना इलाका जब चलेगा, देख लेना इसका रेट कम होगा, इसका रेट मज़ीद कम होने के चांसेस हैं। 4400-4500 वाला ये रेट जो फिगर है, ये बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे मुझे। ठीक आने वाले 15-20 दिन के बाद आप सारी चीज़ें देख लेना और मेरी ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा बना के रख लेना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम खाने वालों के लिए बरकत दे, कमी कोताही अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।